Alright, so in the previous video we talked about the precedence, associativity and order of evolution of operands in C++ programming language. In this video we are going to talk about each and every operator in detail. Before discussing the operators, let us talk about operator overloading briefly. So in C++ you can overload an operator for your own class. So let us see what does it mean. Let's say I have defined a student class. So I have defined a student class and then I create object of the student class, student A. Now if I say A++, incrementing a student doesn't make any sense. But let us assume that we want to define the increment for student in a way that whenever you apply the increment operator, the roll number of the students increment. मान लीजिए हम स्टूडेंट को इस तरह से डिफाइन करना चाहते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट के किसी भी वेरिएबल को प्लस प्लस करे तो उसका रोल नंबर जो है वो एक इंक्रीज हो जाए. Now this behavior is not present in the C++ because you know the student class itself is not present in C++. तो student class तो आपकी अपनी class है. तो अगर प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर आप अपने क्लास के लिए डिफाइन करना चाहते हो तो आपको ये जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है अपनी क्लास के लिए अपने आप डिफाइन करना पड़ेगा. यू हैव टू डिफाइन दिस इंक्रीमेंट ऑपरेटर फॉर योर क्लास योरसेल्फ. दिस इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज नॉट will not come predefined because it doesn't make sense. Because you know how do they know? Let's say one person want to define the increment operator in a way कि जब भी कोई प्लस प्लस करे तो रोल नंबर प्लस प्लस हो जाए, और दूसरा जो डेवलपर है वो इस तरह से डिफाइन करना चाहता है कि जब कोई प्लस प्लस करे तो उसके मार्क्स प्लस प्लस हो जाए. So this behavior is very specific. So in C++ what we can do is we can overload the predefined operators of C++ for my own class. What it means is अगर मैंने अपनी कोई क्लास बनाई है तो उस क्लास के लिए मैं डिफाइन कर सकता हूं कि अगर इस क्लास के वेरिएबल्स को कोई ऐड करता है तो व्हाट शुड द बिहेवियर बी. अगर दो स्टूडेंट्स को कोई सब्ट्रैक्ट करता है तो क्या होना चाहिए, अगर दो स्टूडेंट्स को कोई मल्टीप्लाई करता है तो क्या होना चाहिए. ध्यान दीजिए हम प्री एग्जिस्टेंट ऑपरेटर्स की बात कर रहे हैं, जो ऑपरेटर्स पहले से लैंग्वेज के अंदर एग्जिस्ट करते हैं. अगर उन ऑपरेटर्स का कॉरस्पॉन्डिंग ऑपरेशन मैं अपनी क्लास के लिए डिफाइन करना चाहता हूं, then I can overload that particular operator in C++ inside my own class. So inside the class definition, student की class definition के अंदर, student की class की body के अंदर, you will define the plus plus operator. Now the important thing here is that whenever you overload an operator for your class, you cannot change the arity of that operator. हम ऐसा नहीं कर सकते कि प्लस प्लस ऑपरेटर वैसे तो यूनरी ऑपरेटर है लेकिन हम इसको बाइनरी ऑपरेटर बना दें. बाइनरी ऑपरेटर मींस दैट a प्लस प्लस b. नाउ प्लस प्लस b इज ए यूनरी ऑपरेटर, लेकिन यहां पे हम प्लस प्लस ऑपरेटर को बाइनरी ऑपरेटर की तरह यूज करना चाहते हैं. सो दैट इज नॉट पॉसिबल. सो इफ यू वांट टू डिफाइन एन ऑपरेशन फॉर योर क्लास देन द एरिटी ऑफ दैट ऑपरेशन हैज टू बी द सेम एज द प्री डिफाइंड एरिटी. अगर वो बाइनरी ऑपरेटर है तो वो बाइनरी ही रहेगा. सो द थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज दैट यू कैन ओवरलोड ऑपरेटर, एग्जिस्टिंग ऑपरेटर फॉर योर ओन क्लास. Number 2, you cannot change the arity of that operator. If it is a binary operator, it will remain binary operator. If it is a unary operator, it will remain unary operator. Number 3, you cannot change the precedence of the operator for your class. Alright, now let's talk about each and every operator. अगर आप ऑपरेटर की प्रेसिडेंस को देखें तो सबसे ऊपर सबसे ज्यादा जो प्रेसिडेंस है वो यूनरी ऑपरेटर्स की है. सो यूनरी ऑपरेटर्स हैज द हाईएस्ट प्रेसिडेंस, फॉलोड बाय अर्थमेटिक ऑपरेशंस, followed by relational operations, followed by bitwise operations, and followed by logical operations, right? Or last में obviously we have assignment. So in the beginning the highest precedence is of unary operators. जो unary operator हैं, जो अकेले ऑपरेंड पे एक ही ऑपरेंड लेते हैं. सो यूनरी ऑपरेटर्स की सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस होती है. उसके बाद अर्थमेटिक ऑपरेशंस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस, प्लस, माइनस. और विद इन अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हमें पता है कि मल्टीप्लाई और डिवाइड की प्रेसिडेंस जो है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस की प्रेसिडेंस प्लस और माइनस से ज़्यादा होती है. आफ्टर यूनरी ऑपरेटर यू हैव रिलेशनल ऑपरेटर्स. रिलेशनल ऑपरेटर्स का मतलब लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू. इक्वल टू और नॉट इक्वल टू की प्रेसिडेंस थोड़ी कम होती है और जो इनइक्वालिटीज हैं उनकी प्रेसिडेंस थोड़ी ज़्यादा होती है.
उसके बाद आता है बिटवाइज ऑपरेशंस. बिटवाइज ऑपरेशंस में यू हैव बिटवाइज एंड, बिटवाइज एक्सॉर, बिटवाइज और. सो बिटवाइज एंड की प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा होती है, उसके फॉलोड बाय बिटवाइज एक्सॉर, फॉलोड बाय बिटवाइज और ऑब्वियसली बिटवाइज नॉट इज ए यूनरी ऑपरेटर. सो बिटवाइज नॉट की प्रेसिडेंस कहां पर होगी? बिटवाइज नॉट की प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा यहां पर होगी. सो बिटवाइज नॉट विल हैव द हाईएस्ट प्रेसिडेंस बिकॉज इट्स ए यूनरी ऑपरेटर. सो बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट, ये जो दो ऑपरेशंस है, इनकी प्रेसिडेंस रिलेशनल ऑपरेटर से ज्यादा होती है. ऑलराइट. सो मैंने जो बताया था वो जनरल रूल है, ऐसा नहीं है कि वो हर जगह अप्लाई होता है. तो यूनरी ऑपरेटर्स की सबसे ऊपर, उसके बाद फॉलोड बाय अर्थमेटिक ऑपरेशंस, फॉलोड बाय रिलेशनल ऑपरेशंस, फॉलोड बाय बिटवाइज ऑपरेशंस और लास्ट में लॉजिकल ऑपरेशंस. लॉजिकल ऑपरेशंस में लॉजिकल एंड हैज ए हायर प्रेसिडेंस देन लॉजिकल और एक लॉजिकल नॉट भी होता है. सो एक लॉजिकल नॉट ऑपरेशन भी होता है. लॉजिकल नॉट ऑपरेटर की प्रेसिडेंस भी ऑब्वियसली सबसे ऊपर होगी, राइट, बिकॉज इट्स ए यूनरी ऑपरेटर. सो लॉजिकल नॉट एंड बिटवाइज नॉट, this is bitwise not operation, this is logical not operation. They will override this rule of unary of bitwise operations having lower precedence than arithmetic operations. All right. Last में you have assignment operations and at the end you have comma operator. So comma operator is a special type of operator. We will discuss all of these operators in detail. So now let's take these operators one by one. Alright, so now let's start the discussion of the operators. सबसे पहली जो प्रेसिडेंस है वो है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर. स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर आपको पता ही है. इफ आई से std : सी आउट, इट मींस std नेम स्पेस के अंदर सी आउट इज एन ऑब्जेक्ट. सो : इज ए स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर. स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में क्या आएगा? लेफ्ट साइड में इट विल हैव ईदर ए क्लास और ए नेम स्पेस, और राइट साइड में इट विल हैव द मेंबर function or the member property of that class or that namespace. अगर आप डायरेक्टली क्लास के नाम के साथ किसी प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं तो दैट प्रॉपर्टी हैज टू बी स्टैटिक, अदरवाइज दैट प्रॉपर्टी कैन बी नॉन स्टैटिक ऑल्सो. नॉर्मली जो नॉन स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, नॉन स्टैटिक प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी क्लास के अंदर, किसी भी क्लास के अंदर जो नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं उनकी एग्जिस्टेंस ऑब्जेक्ट लेवल पे होती है. ऑब्जेक्ट लेवल पे होती है तो क्लास लेवल पे उनकी एग्जिस्टेंस ही नहीं होती. अगर क्लास लेवल पे एग्जिस्टेंस नहीं होती तो क्लास के नाम के साथ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगा के ऑब्वियसली यू कैन नॉट एक्सेस देम. नेक्स्ट इज सो लेट्स डिस्कस दिस इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर. सो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर कम्स इन टू फ्लेवर्स: प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट. और ये हमें पता ही है कि प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है. इफ लेट्स से x इज इक्वल टू 5 and if I say a is equal to plus x, then this is pre-increment. If I say a is equal to x plus, then this is post-increment. Post-increment means increment the variable after using the variable in the expression. And pre-increment means पहले increment करो फिर expression में use करो. Increment तो दोनों cases में ही हो रहा है, तो दोनों cases में value of x will be 6. लेकिन इस केस में वैल्यू ऑफ a विल बी 6 और इस केस में वैल्यू ऑफ a विल बी 5. सो पोस्ट इंक्रीमेंट मींस पहले आप वेरिएबल को यूज कर लो एक्सप्रेशन में और उसके बाद उस वेरिएबल को इंक्रीमेंट करो. इसमें एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट इफ आई राइट लाइक दिस, व्हाट इफ आई से a इज इक्वल टू प्लस x प्लस. अब यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे यू आर यूजिंग द सेम वेरिएबल, यू आर इंक्रीमेंटिंग द सेम वेरिएबल ट्वाइस. एक ही वेरिएबल को हम दो बार इंक्रीमेंट कर रहे हैं और एक ही एक्सप्रेशन में. तो ऐसे केसेस में जहां पे एक ही वेरिएबल को आप दो बार इंक्रीमेंट कर रहे हैं, द रिजल्ट इज नॉट डिफाइंड, राइट. या फिर अगर ऐसी सिचुएशन है, लेट्स से a इज एन एरे एंड इफ यू से a ऑफ प्लस i इज इक्वल टू i, तो यहां पे भी आप देखें तो एक ही एक्सप्रेशन, ये तो एक ही एक्सप्रेशन है, उसी एक्सप्रेशन में आप i को चेंज भी कर रहे हैं और आप i को यूज भी कर रहे हैं. अगर एक ही एक्सप्रेशन में आप वेरिएबल को चेंज भी करते हैं और उसी एक्सप्रेशन में आप वेरिएबल को यूज भी कर रहे हैं, देन द रिजल्ट इज अनडिफाइंड. रिजल्ट जो है वो डिफाइंड नहीं है, इसको कंपाइलर अपनी तरह से डिफाइन करता है. लैंग्वेज में दिस इज नॉट डिफाइंड, राइट. So whenever you find
ए वेरिएबल यूज्ड 2 टाइम्स इन एन एक्सप्रेशन, जब भी आपको ऐसा दिखे कि एक एक्सप्रेशन में एक वेरिएबल 2 बार यूज हो रहा है और उसमें से एक बार में वो वेरिएबल इंक्रीमेंट भी हो रहा है, या तो पोस्ट इंक्रीमेंट या प्री इंक्रीमेंट, इट डजंट मैटर, राइट? सो इफ ए वेरिएबल इज इंक्रीमेंटेड इन एन एक्सप्रेशन एंड द वेरिएबल इज ऑल्सो यूज्ड इन दैट एक्सप्रेशन, देन द रिजल्ट इज नॉट डिफाइंड। रिजल्ट जो है वो डिफाइंड नहीं होता। कैसे बिहेव करेगा आई डोंट नो, बट whenever you are writing a program, जब आप कोई C++ का प्रोग्राम लिख रहे हैं, you should avoid these situations where you are incrementing the variable in the same expression and using the variable in the same expression. अगर आपको ये करना ही है तो जो भी आप चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि प्लस प्लस पहले हो बाद में यूज हो, तो आप उसी हिसाब से अपने एक्सप्रेशन को डिवाइड कर दो 2 एक्सप्रेशन में। आप इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, a of i is equal to i, राइट? नाउ द ऑर्डर विल बी स्ट्रिक्टली डिफाइंड, पहले i प्लस प्लस आई होगा, प्लस प्लस आई होने के बाद देन यू विल बी यूजिंग इट। और अगर आप चाहते हो यू नो टू डिफाइन इट अदरवाइज मीन्स दैट कि पहले यूज हो जाए बाद में इंक्रीमेंट हो, तो उसी तरह से यू शुड डिवाइड दिस एक्सप्रेशन इन 2 एक्सप्रेशंस, सो i एंड प्लस प्लस i। अब यहाँ पे पहले यूज होगा उसके बाद इंक्रीमेंट होगा, ऑलराइट? सो यू शुड नॉट बी using the expression using a variable in an expression where the variable is also incremented, that is not defined, all right? Let's come back to this. So plus plus and or obviously इसमें post increment operation has higher precedence than pre increment expression. So pre increment की precedence जो है वो थोड़ी सी कम होती है post increment से, इसीलिए you will see this in object oriented programming that because of this there are certain things which are happening in object oriented programming, all right? So next is the function call and array index subscript operator. So function call operator means अगर आप किसी भी फंक्शन को कॉल करते हैं a, right? So a फंक्शन को जब आप कॉल कर रहे हैं तो फंक्शन कॉल इज ऑल्सो एन ऑपरेटर इन C++। C++ में फंक्शन कॉल भी ऑपरेटर होता है। इसी तरह से अगर आपकी array है, so if a is an array and if you say a of i, तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, these square brackets are also subscript operators, these are also operators, और इनकी प्रेसिडेंस सबसे ऊपर होती है। so if I say a of i is equal to b, so as you know that पहले क्या होगा, पहले a of i रिजॉल्व होगा, पहले a of i इवेल्युएट होगा, और a of i इवेल्युएट होने के बाद फिर उसका रिजल्ट जो है वो b में जाएगा, right? Then it will be initialized, then it will be assigned to b, all right? Next is the dot operator and arrow operator. Dot and arrow, these are used in C++, used in C language also, right? तो अगर ऑब्जेक्ट है आपका स्ट्रक्चर का या क्लास का, right? So if you have an object of type student, then you can access a dot roll number. So it means that a is an object, a is a variable of type student. अगर a pointer है, then you will be accessing a arrow roll number. Arrow operator literally means value at a dot roll number, right? अब आप देख सकते हैं कि value at a के बाद हमें ब्रैकेट लगाना पड़ा। ये जो ब्रैकेट लगाना पड़ा, ये क्यों लगाना पड़ा? Because dot operator has a higher precedence. If I write it like this, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि a वैल्यू एट a डॉट रोल नंबर, तो पहले क्या एक्सप्रेशन इवेल्युएट होगा? पहले a डॉट रोल नंबर इवेल्युएट होगा और उसके बाद उस पर वैल्यू निकलेगी। सो इफ यू वांट टू फाइंड वैल्यू एट a डॉट रोल नंबर, देन यू हैव टू यूज दीज ब्रैकेट्स, देन यू हैव टू यूज दीज parentheses, all right, to override the precedence. Why? Because dot operator has a higher precedence than value at operator. Value at operator जो है वो ये है, value at a, और dot operator जो है वो ये है। तो dot operator की precedence value at operator से ज़्यादा होती है। That's why the dot operator will be applied first before the value at operator. All right, let's come to the next. So in the third precedence, plus plus is there, minus minus is there, plus and minus. ये जो plus minus हैं ये unary operators हैं। Unary operator मतलब let's say you say x is equal to -5. So -5 is a unary operator. ये खाली एक ऑपरेंड ले रहा है. If you say x is equal to 5 minus 2, तो ये जो माइनस है ये दो ऑपरेंड लेता है, 5 और 2, और ये 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करता है. बट इफ यू से x is equal to -5, then this minus is taking just one operand. So minus
as a unary operator has a higher precedence than minus as a binary operation, right? ये माइनस यूनरी ऑपरेटर है और ये माइनस बाइनरी ऑपरेटर है. माइनस बाइनरी ऑपरेटर की प्रेसिडेंस जो है वो 6th लेवल पर है, 6th पॉइंट पर है, और माइनस यूनरी ऑपरेटर की प्रेसिडेंस जो है वो 3rd पॉइंट पर है. सेम गोज फॉर यूनरी प्लस एंड बाइनरी प्लस. हालांकि यूनरी प्लस आई डोंट सी ए रीजन व्हाई यू शुड बी यूजिंग यूनरी प्लस, but there is an operator unary plus also. All right. This is bitwise this is logical not, this is bitwise not. ये हमें पता है लॉजिकल नॉट का मतलब वो उसकी लॉजिकल वैल्यू को कंसीडर करता है, और bitwise not का मतलब वो एक्सप्रेशन वो अपने ऑपरेंड की बिट वैल्यू को कंसीडर करता है. Let's say you are given a variable. Let's say you have a variable integer x is equal to 5. So if I say not of x, then not of x means this is logical not. x का मतलब है 5 का मतलब है true, right? जब भी हम नंबर को बुलियन में कन्वर्ट करते हैं, तो अगर कोई नंबर 0 नहीं है then that number will be converted to true, और अगर कोई नंबर 0 है then that number will be converted to false. और जब हम बूलियन से नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो अगर ट्रू है तो ट्रू बन जाएगा 1, और अगर फॉल्स है तो फॉल्स बन जाएगा 0. सो लेट्स से आई से दैट m इज इक्वल टू नॉट ऑफ x. तो आप ये सोचिए कि पहले ये नॉट ऑफ x होगा. अगर ये नॉट ऑफ x होगा तो x की बुलियन वैल्यू को कंसीडर करेगा. x एज ए बुलियन इंटीजर, तो x का वैल्यू 5 है, लेकिन अगर हम इसकी बुलियन वैल्यू को देखें तो बुलियन वैल्यू ट्रू है, तो नॉट ऑफ ट्रू क्या हो जाएगा? फॉल्स, और नॉट ऑफ फॉल्स क्या हो जाएगा? ट्रू. तो फाइनल वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज ट्रू, और जब आप ट्रू वैल्यू को किसी भी इंटीजर में स्टोर करेंगे तो वो क्या जाएगा? 1 जाएगा. तो फाइनल वैल्यू ऑफ m विल बी इक्वल टू 1. नाउ लेट्स डू द सेम थिंग फॉर बिटवाइज नॉट ऑपरेशन. If I have a bitwise not operation and I say that m is equal to not of x, तब क्या होगा? Right? So bitwise not means that one's complement. Right? Now 5 is 101. Right? This is 5. This is the binary representation of 5. जब आप not of 5 करेंगे तो ये क्या होगा? इसका ones complement हो जाएगा 1010, और फिर जब आप दोबारा से इसका ones complement करेंगे तो you will get the same number. So in this case value of m will be equal to x, or x itself will be equal to 5. So we can say that not of x will always be equal to x. This condition is always true, but not of x may not be equal to x. So this condition is true only when x is either 0 or 1. Only when x is either 0 or 1. All right. So this is the difference between bitwise not and logical not. Bitwise operations are a little faster than any other arithmetic operation or logical operation. All right. Now let's move to the next operation. So next operator is type convert operator. So type convert operator means that if I say 2.5 converted to integer, and this is equal to x. So if I say x is equal to integer 2.5, then the value of x will be 2. Why? Because I am using this operator to convert the type of 2.5 from double to integer. Alright. Next operator is star a. Star a means value at a, and ampersand a means address of a. Value at a and address of a, these are pointer operations. So we will discuss them in detail when we discuss pointers. But value at a means value at a particular address, and address ampersand a means address of a particular variable. Star a means value at a particular address. Right. Next is size of. Size of operator will give you the size of a particular data type in byte. So I can say that size of x, and let us assume that x is integer. So if x is integer, then size of x will be the amount of memory allocated to x in bytes. Right. I can also say size of integer directly. Size of integer directly. Operator takes only one argument. That argument can be either a variable or a literal or a type.
and it will give you the size of that particular type in bytes. All right, then CO await is basically used for synchronization and multi-threading. So we will discuss this in more detail when we discuss multi-threading. Next operation is new array, delete and delete array. These four operators are there. Again, let's discuss these four operators in detail, because if you are coming from C language background, then this may be a little confusing. So what happens is that, let's say you are declaring a student type array. Student ptr is equal to new student array of size 3. All right, so here we are declaring a new array of student objects. Okay, and ptr is pointing to that array. So if you are declaring a student array like this, तो student class का जो कंस्ट्रक्टर है वो कंस्ट्रक्टर जो है 3 बार कॉल होगा. तो इस केस में 3 कंस्ट्रक्टर कॉल्स विल बी देयर. 3 टाइम्स द कंस्ट्रक्टर विल बी कॉल्ड. पहली बार कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ptr0 के लिए, दूसरी बार कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ptr1 के लिए, और तीसरी बार कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ptr2 के लिए. और ये जो मेमोरी एलोकेट हुई है हीप एरिया में, ये मेमोरी एलोकेट हुई है हीप एरिया में, एंड ptr is a pointer which is pointing to this memory. All right, so ये भी स्टूडेंट टाइप का वेरिएबल है, ये भी स्टूडेंट टाइप का वेरिएबल है, और ये भी स्टूडेंट टाइप का वेरिएबल है. इन तीनों स्टूडेंट टाइप के वेरिएबल्स का जो कंस्ट्रक्शन है, ऑब्वियसली दैट कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल ऑफ दीज 3 वेरिएबल हैज हैपेंड वाया द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. ऑलराइट, नाउ लेट्स से you delete this by simply saying delete ptr. अब delete ptr का मतलब क्या है? उस मेमोरी को डिलीट करो जिसको ptr पॉइंट कर रहा है. उस मेमोरी को डिलीट करो मतलब ये वाली पूरी मेमोरी डिलीट हो जाएगी. लेकिन डिस्ट्रक्टर कितनी बार कॉल होगा? स्टूडेंट का डिस्ट्रक्टर भी कॉल होना चाहिए. तो इस केस में डिस्ट्रक्टर केवल एक बार कॉल होगा क्योंकि आपने डिलीट ऑपरेटर यूज किया है. अगर आप डिलीट की जगह डिलीट एरे ऑपरेटर यूज करेंगे तो डिस्ट्रक्टर जो है डिस्ट्रक्टर 3 बार कॉल होगा. इस केस में डिस्ट्रक्टर विल बी कॉल्ड 3 times, right? So as a thumb rule, make sure if you are allocating the memory using new array operator, then you should delete the memory using delete array operator. And if you are allocating the memory using new operator, then you should delete the memory using delete operator. और C लैंग्वेज के साथ तो कभी मिक्स करना ही मत. ऐसा ना हो कि आप न्यू ऑपरेटर से एलोकेट कर रहे हैं और फ्री से डी एलोकेट कर रहे हैं. तो जब आप फ्री से डी एलोकेट करोगे तो वो मेमोरी को तो डी एलोकेट कर देगा लेकिन डिस्ट्रक्टर एक बार भी कॉल नहीं होगा. इसी तरह से अगर आप C लैंग्वेज का malloc यूज कर रहे हैं तो malloc जो है वो मेमोरी तो एलोकेट करेगा लेकिन कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं करेगा. तो C++ में अवॉइड यूजिंग malloc एंड फ्री. न्यू और डिलीट ही यूज कीजिए. और न्यू और डिलीट 2 फ्लेवर्स में आते हैं. पहला सिंपल न्यू, सिंपल डिलीट. दूसरा एरे न्यू, न्यू एरे एंड न्यू डिलीट ऑपरेटर. तो अगर आपने न्यू एरे ऑपरेटर से एलोकेट किया है देन डिलीट यूजिंग डिलीट एरे ऑपरेटर. अगर आपने न्यू से एलोकेट किया है देन फ्री द मेमोरी यूजिंग डिलीट ऑपरेटर. ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट 4. सो पॉइंट नंबर 4, एट पॉइंट नंबर 4 वी हैव पॉइंटर टू मेंबर ऑपरेटर्स. Again we'll discuss them when we discuss object oriented programming, right? Next is point number 5. Point number 5 and point number 6, both of them are arithmetic operations. Multiply, divide, modulus, plus, minus. और जैसा कि मैथमेटिक्स में होता है कि मल्टीप्लाई और डिवाइड की प्रेसिडेंस इज हायर देन प्रेसिडेंस ऑफ प्लस एंड माइनस. इस केस में ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो ऑपरेटर है हमारा मॉडुलस ऑपरेटर कैन ओनली बी अप्लाइड ऑन फैमिली ऑफ इंटीजर्स. मॉडुलस ऑपरेटर हमें रिमाइंडर देता है एंड वी यूज दिस अ लॉट इन कोडिंग. सो मॉडुलस ऑपरेटर कैन ओनली बी अप्लाइड ऑन फैमिली ऑफ इंटीजर्स. फैमिली ऑफ इंटीजर मीन्स कैरेक्टर, इंटीजर, बूल, लॉन्ग, शॉर्ट, लॉन्ग, इन सब डेटा टाइप पर यू कैन अप्लाई मॉडुलस ऑपरेशन. अदरवाइज यू कैनॉट अप्लाई मॉडुलस ऑपरेशन. You cannot apply modulus operation on double. You cannot say 5.5 modulus 2.5. This will be a compile time error. Alright. Next is left shift and right shift. Left shift or right shift, ये दोनों bitwise operations हैं. By the way, this thing is true for bitwise operations also. Bitwise operation can also be applied only on family of integer data type. Bitwise operations cannot be applied on float. Bitwise operations cannot be applied on any other data type other than family of integers.
ऑलराइट, लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट, जब आप किसी लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो उसका इफेक्ट क्या होता है? इफ यू हैव 101 और इस 0101, इसको अगर आप लेफ्ट शिफ्ट करेंगे एक बाई 1 बिट, देन इट विल बिकम 1010। मतलब अगर आप 5 को लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? 10, राइट। सो लेफ्ट शिफ्ट का जो इफेक्ट होता है दैट इज मल्टीप्लीकेशन बाय 2, और राइट शिफ्ट का जो इफेक्ट होता है दैट इज डिवीजन बाय 2। सो व्हेन वी से डिवीजन बाय 2 इट मींस इंटीजर डिवीजन बाय 2, राइट। इंटीजर डिवीजन बाय 2 का मतलब है कि अगर आप 5 को 2 से डिवाइड करेंगे देन द आंसर विल नॉट बी 2.5, आंसर विल बी 2, राइट। सो 5 डिवाइडेड बाय 2 इज 2 बिकॉज इंटीजर डिवीजन में द fractional part, the decimal part is truncated. All right. Next is a three-way comparison operation. Three-way comparison operation. So three-way comparison operation spaceship भी बोलते हैं, और this is relatively new. This came in C++20 only. Three-way comparison operation ऐसा है, अगर आपने C language में strcmp पढ़ा हो तो strcmp was used to compare two strings, और उसका जो आंसर आता था वो ये आता था कि अगर पहली स्ट्रिंग दूसरी स्ट्रिंग से बड़ी है तो एक आंसर आएगा, अगर पहली स्ट्रिंग दूसरी स्ट्रिंग के बराबर है तो दूसरा आंसर आएगा, और अगर पहली स्ट्रिंग दूसरी स्ट्रिंग से छोटी है तो तीसरा आंसर आएगा। तो द आंसर कैन बी नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव, रिफ्लेक्टिंग whether the first string is less than second string, equal to second string, or greater than second string. So same is the three-way comparison operation. Three-way comparison operation will give you 3 types of values, right? It will give you it will not just have a boolean comparison, which means या तो ये true होगा या false होगा। boolean comparison में क्या होता है? मैंने बोला 5 is equal to 2, 5 is equal to 2 is false. If I say 5 is less than 2, that is also false. If I say 5 is greater than 2, that is true, right? So boolean comparison में normally आंसर या तो true होता है या false होता है। 3-way comparison में आंसर जो है true false नहीं होता। 3-way comparison में आंसर जो है वो 3 वैल्यूज होती हैं, पहले वाला छोटा है या दोनों बराबर हैं या दूसरे वाला छोटा है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज द रिलेशनल ऑपरेशंस। रिलेशनल ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स को अगर आप देखें तो हमारे पास ये रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, और दूसरा डबल इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। इसमें मेरा आपसे सजेशन ये है कि ये जो डबल इक्वल टू और नॉट इक्वल टू वाले जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, जहां पे हम दो का स्ट्रिक्ट इक्वालिटी या स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी को कंपेयर करते हैं, इनको आप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए एटलीस्ट अवॉइड कीजिए। लेट्स टेक एन एग्जांपल। लेट्स से you have a for loop, all right, so you have a for loop for, or maybe let's say double x is equal to 0.1 for x is equal to 0.1, x is not equal to 1.0, x plus plus, and let's say what I'm doing is I am saying cout hello. So the question is that how many times will hello be printed? How many times do you think will hello be printed in this case? So in this case hello will not be printed 10 times as you may be assuming. हो सकता है कि आप ये assume कर रहे हो 10 times या 9 times ये print करेगा, लेकिन ये infinite loop है। और ये infinite loop क्यों है, इसको आप मैथमेटिक्स के हिसाब से समझिए। मैथमेटिक्स में क्या होता है, if I say 10 divided by 3, ये मेरा फ्रैक्शन है, can this fraction be converted completely to decimal? It will not be, right? So 10 divided by 3 को जब आप डेसिमल में लिखेंगे तो आउटपुट क्या आएगा? 3.33333। So this is a non terminating decimal number. If it is a non terminating decimal number और आप कह रहे हो कि मैं इसको एक फिक्स लिमिट में स्टोर करना चाहता हूँ, तो आप जिस भी लिमिट में स्टोर करेंगे अल्टीमेटली कुछ ना कुछ प्रिसिशन लॉस तो होगा ना। मान लो आपने कहा है कि आप 2 डेसिमल वैल्यूज तक लिखेंगे, तो यू विल राइट 3.33। इसका मतलब यू आर लूजिंग दिस मच ऑफ नंबर, इतना नंबर तो आपने लूज कर दिया। ऑलराइट, सो इतना नंबर जब आपने लूज कर दिया, सो 3.33 इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 10 by 3, राइट? 10 by 3 इज more than 3.33. okay, same happens here. What happens is that 0.1 को जब आप बाइनरी डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 cannot be converted to binary number system completely. It will be a non-terminating binary number system, और इट विल बी ए नॉन टर्मिनेटिंग बाइनरी नंबर। और ये आप करके देख सकते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे करते हैं, आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो 0.2 and 0 here into 2
0.2 and 0 here, sorry 0.4 and 0 here, then again into 2 0.8 and 0 here, then into 2 so 1 here, and then so 6 to the 12 means 2 here 1 here, so 1 here, right? So हमने यहाँ पे 0.2 था और ये फिर से 0.2 आ गया, तो इसका मतलब यही रिपीट होता रहेगा। तो 0.1 इन डेसिमल नंबर सिस्टम विल बी इक्वल टू 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 and so on. So 0.1, when you try to convert this to binary number system, then it will be a non-terminating binary number system, binary number. Alright. तो 0.1 को जब आप डबल में स्टोर करेंगे तो इट विल नॉट बी स्टोर्ड एज 0.1, इट विल बी स्टोर्ड एज 0.09999 समथिंग लाइक दिस। उसमें जब आप 0.1 ऐड करेंगे, वी आर सेइंग सॉरी, दिस शुड नॉट बी x प्लस प्लस, this should be x plus equal to 0.1. My apologies. Alright, so इसमें जब आप 0.1 ऐड करेंगे तो 0.1 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 0.1999 हो जाएगा, इस तरह से 0.299, उसके बाद ऐसे ऐड करते जाएंगे तो 0.99999, एंड उसके बाद जब आप 0.1 ऐड करेंगे तो इट विल बी 1.09999. Alright, it will never be exactly equal to 1.0. So this is why I was saying that, you know, try to avoid strict equalities and strict inequalities, especially for floating point numbers. अगर इसी फॉर लूप को आप चेंज कर दें और इसी फॉर लूप को आप ऐसे कर दें, if it is less than or equal to, if it is strictly less than 1.0, now it will perform as you expected, right? So until it becomes greater than or equal to 1.0, the loop will continue. Now this is no more an infinite loop. Otherwise जो पहले वाला loop था, that was an infinite loop. I hope this point is clear. Alright. So plus plus minus, these two were relational operators. Output of relational operators is logical answer. इन सबका आउटपुट क्या होगा, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, राइट? सो रिलेशनल ऑपरेटर्स का आउटपुट जो है वो या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है। उसके बाद आते हैं बिटवाइज ऑपरेशंस। बिटवाइज ऑपरेशंस आर अप्लाइड ऑन इंडिविजुअल बिट ऑफ द नंबर। तो इफ आई से 5 plus 6, so when we say 5 plus 6, this plus operator is considering 5 and 6 as numbers, as decimal numbers, and it is adding these two, right? But if I say 5 and 6, तो 5 का जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है which means 101 और 6 का जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है which means 110, इन दोनों के बीच में एंड ऑपरेशन विल बी परफॉर्म्ड, और एंड ऑपरेशन कॉरस्पॉन्डिंग बिट्स को एंड करेगा, राइट? सो 1 and 0 0, 0 and 1 0, 1 and 1 1, 0 and 0 0. So answer is 0 1 0 0. XOR हमें पता ही है, XOR, the result of XOR is that if two bits are equal then the answer is 0, if two bits are not equal then the answer is 1. Similarly OR will be true when either one of them is true, otherwise it will be false, right? So this is coming straight from the truth table, ये आपको पता ही है. After that row number 14 and row number 15, this is logical and logical OR. Logical and logical OR and logical NOT, they take logical operands. मतलब इनका जो ऑपरेंड होगा वो या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, और ऑपरेंड अगर ट्रू, दो ऑपरेंड अगर ट्रू हैं, राइट? सो ट्रू एंड ट्रू विल बी ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स विल बी फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू विल बी फॉल्स, एंड फॉल्स एंड फॉल्स विल ऑल्सो बी फॉल्स. अब इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पे इन दोनों केसेस में शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन होता है, और कल जो हमने ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ऑपरेंड्स की बात की थी, ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ऑपरेंड्स इज नॉट वैलिड फॉर these two operators, right? For these two operators the order of evolution of operands is strictly defined. Okay, so इन दोनों के लिए क्या है कि let's say if I say x is equal to 5 and if 2 is greater than 3 and plus x, then see out hello. Obviously hello will not get printed, right?
hello will not get printed because 2 is greater than 3. ये जो एक्सप्रेशन है ये फॉल्स है, ये एक्सप्रेशन फॉल्स है, तो हेलो तो प्रिंट नहीं होगा। क्वेश्चन ये है कि जब ये पूरा इफ कंडीशन हो जाएगी तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, क्या x इंक्रीमेंट होगा या नहीं होगा? तो आंसर इज x विल नॉट गेट इंक्रीमेंटेड। व्हाई x विल नॉट गेट इंक्रीमेंटेड? बिकॉज एंड ऑपरेटर का अगर पहला सब एक्सप्रेशन, पहला ऑपरेंड फॉल्स है तो हमें यहीं से वैल्यू मिल गई, दूसरा ऑपरेंड विल नॉट बी इवैल्यूएटेड, दूसरा ऑपरेंड जो है वो इवैल्यूएट ही नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन। ये जावा में भी ऐसे ही होता है, शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन। ऑलराइट, सो इफ the first sub expression or the first operand of AND operator is giving me the final answer, then the second operand will not be evaluated. The same is true for OR operation also. अगर OR operation का लेफ्ट साइड वाला ऑपरेंड ट्रू है तो राइट साइड वाला ऑपरेंड इवैल्यूएट ही नहीं होगा, क्योंकि पूरा एक्सप्रेशन जो है वो ट्रू ही होने वाला है। अच्छा, इसी केस में अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज कर दें, हम इसको चेंज कर दें, एंड इफ आई से 3 इज ग्रेटर देन 2, ऑलराइट, 3 इज ग्रेटर देन 2, नाउ बिकॉज 3 इज ग्रेटर देन 2 इज ट्रू, अब तो ये ट्रू है तो ये दूसरे वाले एक्सप्रेशन को भी इवैल्यूएट करेगा और x की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 6 हो जाएगी एंड हेलो विल बी प्रिंटेड, राइट, हेलो विल बी प्रिंटेड। बट यहां पे अगर आप x को प्रिंट करेंगे तो x की वैल्यू विल बी 6, पहले वाले केस में x की वैल्यू वुड हैव बीन 5। तो यू शुड अवॉइड राइटिंग ए कोड which is not deterministic, deterministic as in which whose logic is not deterministic, right, कि आप शुरुआत में बता पाओ कि आपका आंसर क्या होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस आपको मिल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने ऐसा कोड लिखा हुआ है जिसके कारण आपका बिहेवियर एज ए साइड इफेक्ट, यू नो, देयर इज सम चेंज व्हिच इज हैपनिंग एज ए साइड इफेक्ट। यू शुड अवॉइड राइटिंग सच कोड। अगर आप चाहते हैं इंक्रीमेंट पहले हो तो यहाँ पर इंक्रीमेंट कर दीजिए, पहले इसको प्लस प्लस एक्स कीजिए और फिर खाली एक्स को यूज कीजिए यहाँ पे, ऑलराइट। सो दिस वे you know, you will not be surprised with there will not be any surprises in the output, all right. Now let's come to the next 16th. So 16th is essentially assignment operator. ये तो हमें पता ही है, ये 3 आर्ग्यूमेंट लेता है, एक्सप्रेशन नंबर 1, एक्सप्रेशन नंबर 2 एंड एक्सप्रेशन नंबर 3। अगर एक्सप्रेशन नंबर 1 ट्रू है तो एक्सप्रेशन नंबर 2 विल बी इवैल्यूएटेड, अदरवाइज एक्सप्रेशन नंबर 3 विल बी इवैल्यूएटेड, ऑलराइट। और असाइनमेंट ऑपरेटर हमें पता ही है, असाइनमेंट ऑपरेटर की जो एसोसिएटिविटी है वो राइट टू लेफ्ट है। और अगर आप एसोसिएटिविटी के हिसाब से देखें तो असाइनमेंट ऑपरेटर और यूनरी ऑपरेटर्स, इनकी एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट है, बाकी लार्जली ऑल द ऑपरेटर्स हैव लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी, राइट। एंड ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ऑपरेंड्स इज डिफाइंड ओनली फॉर लॉजिकल और असाइनमेंट ऑपरेटर एंड कॉमा ऑपरेटर। So now let's come to comma operator. Comma is a very interesting operator because comma is available as an operator in C++, but comma is not used as an operator in C++. In most of the cases, comma is used as a separator. So if I say integer x is equal to 2,3, then the value of x will be 3. Because the order of evaluation of comma operator is from left to right, तो पहले 2 इवैल्यूएट होगा, फिर 3 इवैल्यूएट होगा, फाइनल आंसर विल बी 3 और 3 जो है वो x में चला जाएगा, ऑलराइट। नाउ लेट्स टेक अनदर थिंग, राइट। इफ आई से इंटीजर x इज इक्वल टू 5 एंड देन printf or not, maybe not printf, let's say sum plus plus x plus plus x, right। So here यहाँ पे ये प्रॉब्लम है बिकॉज यहाँ पे कॉमा इज नॉट एक्टिंग एज ए ऑपरेटर, कॉमा इज एक्टिंग एज ए सेपरेटर। कॉमा केवल 2 आर्ग्यूमेंट्स को सेपरेट करने के लिए यूज हो रहा है, कॉमा ऑपरेटर की तरह यूज नहीं हो रहा। एंड व्हेन कॉमा इज यूज्ड एज ए सेपरेटर टू सेपरेट 2 आर्ग्यूमेंट्स ऑफ ए फंक्शन इन ए फंक्शन कॉल, देन द आंसर इज नॉट डिफाइंड। तो इस केस में पहले वाला आर्ग्यूमेंट इवैल्यूएट होगा या दूसरे वाला आर्ग्यूमेंट इवैल्यूएट होगा, दिस इज नॉट डिफाइंड। सो try to avoid writing code where you are performing some operation when you are calling the function, right, because we don't know the order in which those operations are performed, because those operations will be performed in an undefined order. We don't know that, right? Now the question will come that, you know, then why do we use comma operation? Why do we have comma operator, or is there a use case of comma operator? There is a use case of comma operator, बट अगर ये यूज केस नहीं भी होता तो भी यू कुड हैव डन दैट, राइट।
So let's say I write this, while x is equal to a of I and x is not equal to 5, till then do I plus plus, right? Now in this code you can see that here comma is used as an operator. तो पहले हमने कहा x is equal to ai, right? Let's assume that a is an array, right? So a is an array 1 5 2, right? So value of x will be equal to 1. Let's assume that initially I is 0. Value of x is equal to 1. Then you are comparing x is not equal to 5. So x is not 1 is not equal to 5, then plus plus. तो पहले I यहाँ पे था, अब I comes here, right? Now x is equal to 5. So this condition will be false, and then the control will come out of the while loop. So essentially what we are doing is we are linearly traversing the array till we get a 5, till we get to 5. Alright. So I mean, it is not that this code cannot be written in a more readable way. Obviously, you can write this code in a more readable way. But this is how you can use comma as an operator, right? I will not recommend it. In my experience, I have not seen people using comma as an operator. Comma in most of the cases is used as separator only, so avoid using comma as an operator. Alright, so this was all about operators in C++. I hope you like this video. We will continue this series of videos on C++ programming. So I will keep uploading 1 or 2 videos per day, and this way we will be able to cover entire C++. The focus of these videos is, again, I am saying it again, the focus of these videos is not to teach you the very basics of C++ programming. The focus of this video is to brush up your C++ skills so that you are ready to face interviews for C++ as a primary programming language. Thank you very much.